تو دوستو اس کہانی کے آغاز ہوتا ہے اور ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام روز تھا۔ اس کے چہرے پر کٹ لگے ہوئے تھے اور وہ بہت زیادہ زخمی نظر آتی ہے۔ یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مشکلات سے گزری ہے اور کوئی اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے سوال کر رہا تھا۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اب یہ منظر یہاں سے بدل کر چند ہفتے پہلے کی ماضی میں آتا ہے جب روز کے ساتھ یہ سب نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سب یہیں سے شروع ہوا ہوگا۔ رات کا وقت تھا جب ہم دیکھتے ہیں کہ روز کی ماں اس کے گھر میں کھانا پکا رہی تھی۔ جب روز کام سے واپس آتی ہے تو وہ اپنی ماں سے ملتی ہے اور دونوں ماں بیٹی بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی کیونکہ روز کی ماں نے اسے اکیلے ہی پالا تھا۔ روز کے والد اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور وہ تب سے اکیلی رہ رہی ہے۔ روز کی ماں اسے بتاتی ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں ہم میرے ایک دوست سے ملنے جائیں گے جس کا نام ڈیرک ہے۔ حالانکہ روز وہاں جانے کی خواہش نہیں رکھتی لیکن اس کی ماں اسے منا لیتی ہے کیونکہ وہ بھی چاہتی تھی کہ روز اس کے ساتھ اس سفر پر جائے، اس لیے وہ مان جاتی ہے۔ پھر جب وہ دن آتا ہے روز اور اس کی ماں تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں روز دوبارہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کو اس آدمی سے ملے زیادہ وقت نہیں ہوا کہ ہمیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، کون جانے وہ برا آدمی ہو اس پر۔ روز کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ بیٹی وہ بہت زیادہ اچھا آدمی ہے اور جب تم اس سے ملو گی تمہیں بھی اس کی عادتیں پسند آئیں گی اور تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اور اب جیسے ہی روز کی ماں گاڑی کا انجن سٹارٹ کرنے کے لیے چابی گھماتی ہے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ جب روز کہتی ہے دیکھو ماں یہ ہمارے لیے ایک اشارہ ہے کہ ہمیں اس سفر پر نہیں جانا چاہیے، اور اس کی ماں اس بات کا مذاق اڑاتی ہے اور گاڑی ٹھیک کر لیتی ہے اور یہ لوگ یہاں سے نکلتے ہیں اور بندرگاہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر روز کچھ دیر کے لیے گاڑی میں رکتی ہے اور اس کی ماں ڈیرک سے ملنے جاتی ہے جو اس وقت کشتی میں سامان لوڈ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد روز کی ماں گاڑی سے سامان نکال رہی ہوتی ہے۔ پھر روز وہاں دو آدمیوں کو دیکھتی ہے۔ ایک آدمی اس کی مدد کرنا چاہتا تھا سامان اٹھانے میں لیکن وہ انکار کر دیتی ہے کہ شکریہ میں یہ خود کر سکتی ہوں۔ پھر ماں اور بیٹی کے درمیان تھوڑی سی بات چیت ہوتی ہے اور وہ ڈیرک کی کشتی پر آ جاتی ہے۔ اس کشتی کا نام اینیلیسیا تھا۔ ڈیرک بہت امیر آدمی تھا لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ کشتی میں نے کسی اور سے لی ہے اور اس کا نام نہیں بدلا گیا کیونکہ سفر کے وقت یہ چیز اچھی نہیں ہوتی۔ ابھی بھی روز کو ڈیرک پر بھروسہ نہیں تھا مگر وہ ایک اچھا شخص لگتا تھا۔ اور اب تمام تیاریاں مکمل ہونے کے بعد وہ لوگ اپنے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روز کی ماں اور ڈیرک کا رشتہ بہت پیار بھرا تھا۔ جب روز اپنے کمرے میں جاتی ہے تو وہ اپنے فون کو چیک کرتی ہے جہاں بالکل بھی نیٹ ورک نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ میں اپنی ماں کی طرح ایسی محبت میں پاگل نہیں ہوں کہ میں کسی پر بھی بھروسہ کر لوں۔ جب وہ اپنی ماں سے کہتی ہے تو اس کی ماں اسے تسلی دیتی ہے۔ اب روز کا دل تھوڑا ہلکا ہوتا ہے اس لیے ڈیرک اسے ایک چھوٹی کشتی چلانا سکھاتا ہے۔ آج روز کی ماں کا برتھ ڈے تھا اور روز پہلے سے ہی اپنے ساتھ کیک لے کر آئی تھی تو وہ اسے برتھ ڈے وش کرتی ہے۔ ڈیرک ان دونوں کو اپنی طرف سے تحفے دیتا ہے۔ وہ اس کی ماں کو ایک شرٹ دیتا ہے اور روز کو ایک چھوٹی سی چھری دیتا ہے جو مشکل وقت میں کام آ سکتا ہے۔ اب روز کو یہ تحفہ پسند آیا مگر وہ چھری دیکھ کر تھوڑا عجیب محسوس کرتی ہے مگر دھیرے دھیرے ڈیرک کے لیے اس کی نفرت بھی کم ہونے لگتی ہے۔ اگلے دن جب روز کی ماں اپنی تصویر بنوا رہی تھی تو اچانک تیز ہوا کے سبب وہ پانی میں گر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر ڈیرک بوٹ روک دیتا ہے اور روز اسے کہتی ہے کہ جلدی نیچے جاؤ اور ایک کمبل لے آؤ۔ روز جلدی نیچے جاتی ہے اور جب وہ کمبل ڈھونڈ رہی تھی تو اسے وہاں کچھ ہتھیار نظر آتے ہیں جو اسے تھوڑا پریشان کر دیتے ہیں مگر روز اسے کمبل دیتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو مگر تمہارا فون بھی میرے ساتھ گر گیا تھا۔ روز کہتی ہے کہ ماں کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، مجھے اپنے موبائل کی کوئی فکر نہیں، مجھے آپ کی فکر تھی۔ پھر ایک طوفان ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے جسے دیکھ کر دونوں ماں بیٹی پریشان ہو جاتی ہیں۔ ڈیرک انہیں تسلی دیتا ہے کہ یہ عام بات ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا اور ویسا ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ سیفلی طوفان سے نکل جاتے ہیں۔ اگلے دن دونوں ماں بیٹی بات کر رہی ہوتی ہیں۔ روز کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں اچھی زندگی نہیں دے سکی۔ روز کہتی ہے کہ نہیں ماں، میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے آپ سے کوئی بھی شکایت نہیں۔ پھر ڈیرک بھی آ جاتا ہے۔ روز اس سے ان ہتھیاروں کے بارے میں پوچھتی ہے۔ جواب میں وہ کہتا ہے کہ ہتھیار میرا کام کا حصہ ہے کیونکہ میں پہلے پولیس آفیسر تھا، پھر میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی اور اب میں سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتا ہوں، اس لیے انہیں اس پر زیادہ شک نہیں ہوتا۔ روز کو ہتھیاروں میں تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے اس لیے ڈیرک اسے گن چلانا سکھاتا ہے۔ وہ بھی حیران ہوتا ہے کہ روز بہت جلدی سیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ روز
के वालिद फौज में थे, शायद इसलिए वो हथियार चलाने में इतनी अच्छी है। वक्त के साथ रोज को भी डीर्क पसंद आने लगता है। अब एक रात जब वो सो रही थी, अचानक रोज की आंख खुल जाती है। जब वो देखने जाती है तो वो एक और बोट इसकी तरफ आ रही थी जिसमें 3 लोग होते हैं और इनके पास हथियार होते हैं। वो इनकी बोट में घुस जाते हैं और डीर्क और इसकी माँ को गन पॉइंट पर धमकाने लगते हैं। वो डीर्क से कुछ सवाल करती है क्योंकि वो इसके बारे में कुछ जानना चाहती थी, मगर वो इसे कुछ नहीं बताता। इसलिए गुस्से में एक आदमी रोज की माँ के जोर से थप्पड़ मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। वो रोज को देखती है और इसे फौरन छुपने का कहती है, इसलिए रोज जल्दी नीचे जाती है ताकि बंदूक ले सके, मगर जब तक वो बंदूक लेकर वापस आती वो इसकी माँ को गोली मारकर कत्ल कर देते हैं। एक गोली डीर्क को भी लगती है जो इसके कंधे पर लगती है और वो समुद्र में गिर जाता है। रोज मुकम्मल तौर पर खौफजदा हो जाती है। वो छुपकर बैठ जाती है। इसके हाथ में बंदूक थी और वो सोचती है कि अगर कोई नीचे आया तो वो इस पर गोली चला देगी। जिस चीज की तलाश में वो लोग आए थे वो ना मिलने पर वो वहां से जाने का फैसला करते हैं। खुशकिस्मती से वो रोज को नहीं देखते, मगर जाने से पहले वो कश्ती को आग लगा देते हैं। कुछ देर बाद रोज बाहर आती है और अपनी माँ की लाश को देखकर मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। इसे आग भी बुझानी पड़ती है, लिहाजा अपनी जान बचाने के लिए वो आग बुझाने में लग जाती है और वो कामयाब भी हो जाती है। मगर अपनी माँ को खोने के सबब वो बहुत रोती है। वो मुकम्मल तौर पर अकेली हो जाती है, इसलिए पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह जब वो खुद को संभालती है तो अपनी माँ की लाश को कपड़े में लपेटती है। अब कश्ती के साथ लटकने वाला कपड़ा जिसकी मदद से कश्ती आगे बढ़ रही थी मुकम्मल तौर पर जल चुका था। रोज को समझ नहीं आता कि क्या करे, क्योंकि इसे कश्ती के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी। लिहाजा वो नीचे रेडियो तलाश करने जाती है ताकि मदद के लिए किसी को कॉल कर सके, मगर बदकिस्मती से रेडियो भी मुकम्मल तौर पर जल चुका था। रोज अब समझने और सोचने लगती है कि मैं क्या करूं, मैं समुंदर के बीच में अकेली फंस गई हूं। फिर इसकी नजर एक रस्सी पर पड़ती है। जब वो रस्सी खींचती है तो इसके साथ डीर्क बंधा हुआ था। वो जिंदा था, बस गोली लगने की वजह से जख्मी था। वो समुंदर से मदद के लिए रोज को आवाज देता है। फिर रोज रस्सी खींचकर इसे कश्ती पर ले आती है। वो इसे बार बार पूछती है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने मेरी माँ को कत्ल किया, मगर डीर्क कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि वो कौन थे। रोज इससे पूछती है कि अब बताओ मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि रेडियो भी जल गया और कपड़ा भी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिर डीर्क इसे बताता है कि तुम वहां पड़ा कपड़ा लगा दो और इससे हमारी कश्ती आगे बढ़ेगी। रोज ऐसा ही करती है और वो कपड़े को लगा देती है। अगले दिन रोज डीर्क की चोरी की तहकीकात करती है, मगर इस पर भरोसा नहीं करती। कहीं ना कहीं इसे डीर्क पर शक था और इसका शक इस वक्त बढ़ता है जब वो डीर्क की पुरानी तस्वीर देखती है जिनमें वो अपनी बीवी के साथ था और इसकी बीवी का नाम एनीलिसिया था। यानी डीर्क ने इस कश्ती के बारे में झूठ बोला था। ये कश्ती इसकी अपनी थी। डीर्क के पास इन लोगों की तस्वीरें भी थी जिन्होंने रोज की माँ को कत्ल किया था। इसका मतलब ये था कि डीर्क इन लोगों को जानता था, मगर वो शुरू से झूठ बोल रहा था। ये सब जानने के बाद रोज सोचती है कि इसे बांध दे। अब डीर्क बेहोश था तो ये इसके लिए अच्छा मौका था और वो डीर्क के हाथों को रस्सी से बांध देती है। मगर कुछ देर बाद जब वो चेक करने आती है तो डीर्क गायब था। रोज इसे ढूंढने लगती है। जब वो नीचे आती है तो डीर्क वहाँ होता है। रोज चाकू पकड़कर पूछती है कि वो कौन लोग थे। फिर डीर्क सिर्फ ये कहता है कि बेहतर होगा कि अगर तुम इनके बारे में ना जानो। डीर्क रोज से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं था, ना ही इस रोज की माँ की मौत का दुख था। वो रोज को अपनी बातों में उलझा देता है और कश्ती ठीक करने लगता है क्योंकि इसका एक हाथ बेकार हो चुका था। रोज के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए इसकी बात सुननी पड़ी क्योंकि डीर्क ही वह शख्स था तो इसे इस समुंदर से बाहर निकाल सकता था। ये लोग इंजन ठीक करने की कोशिश भी करते हैं, मगर ये मुकम्मल तौर पर बेकार हो चुका था। लिहाजा अब इनके पास समुद्री हवा के सिवा कुछ नहीं था जिसकी मदद से वो आगे बढ़ सकते थे। रोज अपनी माँ की याद में इसकी लाश से एक लॉकेट निकाल कर पहन लेती है। डीर्क कहता है कि ये लॉकेट मैंने तुम्हारी मोम को दिया था, मगर रोज जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि ये लॉकेट इसकी माँ का बहुत पुराना था, जबकि वो डीर्क से चंद दिन पहले ही मिली थी। अब वो 2 दिन तक आगे बढ़ते रहते हैं, मगर एक दिन डीर्क बहुत गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में बातें करने लगता है क्योंकि नक्शे के मुताबिक वो अपनी मंजिल पर नहीं था बल्कि इससे बहुत दूर जा रहा था। डीर्क को गुस्से में देखकर रोज अपने कमरे में जाकर छुप जाती है। इसने अपनी हिफाजत के लिए एक बंदूक भी उठा ली। सुबह जब वो चेक करने बाहर आई तो डीर्क एक कोने में मायूस बैठा था। रोज खुद को और इर्द गिर्द को देखने लगती है जहां इसे एक जजीरा नजर आता है और अब डीर्क से पूछे बगैर वो कश्ती को जजीरे की तरफ मोड़ देती है, मगर वो इस कश्ती के जरिए साहल तक नहीं जा सकते थे। लिहाजा
इन्हें वहां तक पहुंचने के लिए एक छोटी कश्ती या बेड़े का सहारा लेना पड़ता है। डीर्क भी जजीरे पर जाना चाहता था, इसलिए वो पहले बेड़े पर सवार हो जाता है, मगर एक हाथ से काम ना करने की वजह से इससे रोज की जरूरत होती है कि वो कश्ती चलाए, मगर रोज को भी इस पर भरोसा नहीं था, मगर वो मजबूर थी, इसलिए वो चुपचाप बेड़े में आ जाती है। जब वो कश्ती चला रही थी तो कश्ती का एक हिस्सा खुलकर पानी में गिर जाता है, क्योंकि ये रोज के लिए नया था। लिहाजा वो कश्ती के इस हिस्से को निकालने समुद्र में जाती है, मगर वो तैराकी नहीं जाती, इसलिए वो कश्ती को तलाश करने लगती है। इसने एक लाइफ जैकेट भी पहनी हुई थी। बेड़े से डीर्क इसे बता रहा था कि वो लाइफ जैकेट को कैसे हटा सकती थी, लेकिन जब वो थोड़ी डूबी, डीर्क समुद्र में छलांग लगाकर इसे किनारे ले आया। रोज भी होश में आ चुकी थी, वो दम घुट रहा था, मगर डीर्क ने CPR दी और इसे होश में ले आया। डीर्क ने जजीरे का जायजा लेने के लिए जाना। अपनी देखभाल के बाद रोज भी जजीरे के जंगल की तरफ चल पड़ी, मगर जब वो गार में पहुंची तो डीर्क पानी पीने गया था और वो रोज को पानी पीने के लिए कहता है, और डीर्क कहता है कि हम कल जाएंगे, क्योंकि रात होने वाली थी। ये लोग राफ्ट को साहिल पर ले आए थे, इसलिए रोज इसमें सो गई, जबकि डीर्क बाहर आग जला लेता है। रोज को नींद नहीं आ रही थी तो वो डीर्क के करीब बैठ गई। दोनों बातें करने लगे और डीर्क ने अपनी कहानी बताना शुरू की। वो कहता है कि मैं एक ईमानदार पुलिस वाला था, मैंने 10 साल तक अपनी ड्यूटी अच्छी तरह की थी, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। दूसरी तरफ लोग अमीर हो रहे थे। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि वो समझती थी कि मैं हालात से हार चुका हूँ। फिर मैंने नेकी का रास्ता छोड़ा और बुरे रास्ते पर चल पड़ा और गलत लोगों के साथ मिल गया, जहां मुझे बहुत सारा पैसा मिला और मैं अमीर हो गया। और जिस आदमी के साथ मैं काम करता था वो वाकई किसी शैतान से कम नहीं था, क्योंकि वो जो कुछ करता था जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, जैसे चोरी करना, लूटना, लड़कियों को अगवा करना, फिर इन्हें स्मगल करके बेच देना और हर किस्म के गलत काम करना। और हाँ, मैं तुम्हारी माँ से मोहब्बत नहीं करता था, मुझे बस वो पसंद थी, इसलिए मैंने उसे फंसाया, क्योंकि वो खूबसूरत थी और तुम भी। अगर वो ना होती तो तुम होती, चाहे वो औरत हो या बेटी हो। उसको बहुत गुस्सा आया। अब डीर्क कहता है कि मेरे बॉस को तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियां पसंद है, जिन्हें वो अगवा करके बेचते हैं। और हाँ, मेरी बात करें, मैंने फिर इन बुरी चीजों से मजा लेना शुरू कर दिया। जैसे मुझे लोगों को लूटना बहुत अच्छा लगता था, मैंने अपने बॉस को भी लूट लिया। वो उस दिन मेरे पैसे लेने आया था जिस दिन तुम्हारी माँ की मौत हुई। ये सब सुनकर रोज अपने गुस्से पर काबू न रख सकी। इसने डीर्क को मारा और नीचे गिरा दिया। रोज ने अपने बैग से पिस्तौल निकाली और डीर्क की तरफ गन पॉइंट कर ली और उसे मारने की धमकी दी, मगर डीर्क अभी भी इससे नहीं डरा। वो उसे छेड़ते हुए कहता है कि तुम रस्सी से भी बांध नहीं सकती, मैं कहाँ से आजाद हूँ, तुम मुझे मारने के लिए क्या करोगी। रोज को इस पर बहुत गुस्सा आया। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, गोली नहीं निकली, क्योंकि पिस्तौल खाली थी। देखो, डीर्क को मौका मिल गया। इसने थप्पड़ मारा और उसे नीचे गिरा दिया, मगर रोज किसी तरह अपने आप को छुड़वा कर दौड़ गई और डीर्क को पिस्तौल मिल गई। जल्दी से रोज जंगल में दौड़ने लगी। डीर्क कहता है कि अब तुम हद से ज्यादा जान चुकी हो, इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। इसने पिस्तौल उठाई और उसके पीछे जंगल में दौड़ने लगा, जहाँ रोज दौड़ रही थी और डीर्क उसके पीछे था। और ये सारा अमल सारी रात चलता रहा। सुबह के वक्त रोज ने एक मंसूबा बनाया कि मैं राफ्ट के जरिए भागूंगी, मगर डीर्क जो कि एक बुलंद मुकाम पर खड़ा था, वो रोज पर गोलियां चलाने लगा। एक गोली रोज के पाँव में भी लगी। इसके अलावा डीर्क भी एक बुलंद जगह से गिर गया। वो मर तो ना सका, मगर वो काफी जख्मी हो गया और रोज उसे मरा समझकर राफ्ट में आ गई। फिर जल्दी से कश्ती में चली गई, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता कश्ती भी डूबना शुरू हो गई, इसलिए रोज ने हर बारी चीज को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। फिर उसे अपनी माँ की लाश समुद्र में छोड़नी पड़ी, मगर फिर भी कश्ती डूब गई और रोज को दोबारा राफ्ट में वापस आना पड़ा, मगर वो बहुत रो रही थी। वो समुद्र में 2 दिन रही। एक दिन उसे एक कश्ती नजर आई तो फ्लेयर गन की मदद से रोज ने कश्ती को अपनी तरफ मतवज्जा किया। उन्होंने फ्लेयर की रोशनी देख ली थी, मगर वो रात के वक्त रोज को बचाने के लिए आ गए और उसे अपनी कश्ती में ले गए। उन्होंने इसे कुछ खाने को दिया, मगर इन लोगों के पास भी हथियार थे। इन्हें देखकर रोज ने समझा कि ये लोग जो मेरी जिंदगी बचा रहे हैं वो अच्छे लोग नहीं है, क्योंकि फिर उसे एक लड़की नजर आई जो नशे में थी और उसे कहीं ले जाया जा रहा था। अब रोज बाथरूम जाने का बहाना करती है और वहाँ से चली जाती है। इसे एहसास हुआ कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में डीर्क ने बताया था। ये वो लोग हैं जो लड़कियों को स्मगल करते हैं। फिर उसे इनकी कश्ती भी नजर आई जो इसी जहाज में थी, जिन्हें खूबसूरत लड़कियां पसंद थी। तो एक मंसूबा बनाकर रोज ने अच्छे तरीके से तैयार होकर बॉस के पास जाने का फैसला किया। इसने अपनी बातों में बॉस को उलझाकर इसे फंसाने की कोशिश की। जब बॉस इसकी बातों में आ गया तो रोज ने इस पर
वेंचीज से हमला किया। इसने इसे खूब मारकर मार डाला। फिर तलाश करते हुए रोज को ज्यादा हथियार मिल गए और अब खेल बिल्कुल बदल गया। रोज अपने खेत तक पहुंच गई, जहां पहले वो एक मासूम लड़की लगती थी, अब वो एक किलर, एक शूटर बन गई थी। जो भी इसके सामने आ रहा था वो इसे मार रही थी और इस तरह वो अपनी हिम्मत और हौसले से सबको मार देती है, जो नामुमकिन था। फिर वो आगे बढ़ती है और इस लड़की तक पहुंच जाती है जो रोज ने पहले देखी थी। वो लड़की कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, इस शिप पर दूसरी लड़कियां भी मेरे साथ बंधी हुई हैं, जो ये लोग हमें किडनैप करते हैं और बेचने ले जाते हैं। रोज जाकर वहाँ एक दरवाजा खोलती है जहाँ वो सारी लड़कियां मिलती है जो बंधी हुई थी। रोज इन्हें बचाने से पहले बॉस का एक साथी जो अभी तक जिंदा था आता है और रोज पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो रोज पर हमला करते हुए इसे मार डालता। रोज इससे पहले ही इस पर हमला करती है और इसे मार डालती है, जिस वजह से वो मर जाता है। फिर जब रोज ऊपर आती है तो एक और बंदा जिंदा था, जो कोई और नहीं बल्कि डिर्क होता है। रोज इसे जिंदा देखकर हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि तुम इस आइलैंड पर मर चुके थे, फिर तुम यहाँ पर कैसे हो, और वो भी जिंदा। जब डिर्क बताता है कि मेरा बॉस वहाँ आया था, मैंने इसे कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बदल दी और फिर मैंने इसे शिप पर भेजा कह कर के तुम वहाँ हो और उसने मुझे बचाया। ये सुनकर रोज हंसना शुरू कर देती है। वो कहती है कि लेकिन मैंने तुम्हारे बॉस को मार डाला, वो अब नहीं रहा। ये सुनकर डिर्क इसे जमीन पर धकेल देता है। फिर वो गन उठाता है और इसे मारने के लिए आता है, लेकिन जब वो वहाँ आता है तो देखता है कि रोज गायब हो चुकी थी। जब वो इसे देखने के लिए जाता है तो रोज एक केमिकल छोड़ देती है, जिससे ही वो इसका दिमाग खो देते हैं। रोज को एक और मौका मिलता है और वो डिर्क को छुरी से मार डालती है। ये वही छुरी थी जो डिर्क ने इसे गिफ्ट दी थी। अब शिप पर सारे बुरे लोग मार दिए गए थे, सिर्फ रोज और वो लड़कियां जो बंधी हुई थी जिंदा बची थी। रोज इन सबको आजाद कर देती है। ये लोग देखते हैं कि शिप बोर्ड की तरफ जा रही थी। रोज और सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो अब सेफ थे। जैसे ही वो पोर्ट पहुंचते हैं, पुलिस पूरी दास्तान संभाल लेती है और यहाँ से सीन वापस उसी जगह पर आता है जहाँ से मूवी शुरू हुई थी, जब रोज जख्मी थी और कोई इससे सवाल कर रहा था। फिर रोज ये कहानी पुलिस ऑफिसर को बताती है। इस पर पुलिस ऑफिसर रोज की हिम्मत की तारीफ करता है, कह कर के बहुत अच्छा किया, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है और जल्द ही सारी लड़कियां इनके घर भेजी जाएंगी। यहाँ रोज कह देती है मैं अपने घर नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन पुलिस वाला ये कहकर चला जाता है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारे पास तुम्हारा मुस्तकबिल है, तुम्हारे आने वाला वक्त जिसके लिए तुमने लड़ाई की थी, अब तुम्हें इसके लिए जीना होगा। ये सुनकर रोज को हिम्मत मिलती है और वो फैसला करती है कि वो आगे बढ़ेगी और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगी। और इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।